بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گی کہ ایک لڑکی جو شادی کی پہلی رات ہی سجدے کی حالت میں مر گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ بہت ہی نیک عورت تھی جو سجدے کی حالت میں اسے موت آئی، لیکن جب دفن کرنے لگے تو اس کی میت پر ہی اللہ کا ایسا دردناک اور بھیانک عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا کہ موجود مہمان توبہ توبہ کرتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ ہر کوئی اللہ اللہ کہہ کر بھاگ رہا تھا۔ آخر میت پر ایسا عذاب قبر کا کیوں آیا؟ جب راز کھلا کہ یہ لڑکی آخر ایسا کیا کرتی تھی تو مارے شرم کے کسی کو وہ منہ دکھانے کے کوئی قابل نہ رہا۔ دولہا، میرا نام یوسف ہے۔ آج میری شادی ہوئی تھی اور میری بیوی دلہن بن کر میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری بیوی بہت ہی معصوم اور خوبصورت تھی۔ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھوں گا۔ میرے گھر میں جوائنٹ سسٹم میں رہتا تھا۔ میرے 3 چاچو بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ میری بہت ہی سخت طبیعت کی مالک تھی ماں۔ میں اپنی بیوی کو سب سے بچا کر اور چھپا کر رکھوں گا کہ ان کی بیٹی بہت معصوم ہے اور ڈپریشن کا شکار بھی رہی ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا تھا۔ یہ ان کے ماں باپ کا کہنا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ جوائنٹ فیملی میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جو اس کی قسمت۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے بہت سارے تحفے طرح طرح کے خرید رکھے تھے۔ مجھے فیملی بنانے کا بے حد شوق تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو ساری زندگی آنکھوں پر بٹھا رکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ اگر مجھے دنیا کہتی کہ یہ بیوی کے نیچے لگ گیا ہے یا بیوی کا غلام ہو گیا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ مجھے تو اپنی بیوی کا ہی خیال رکھنا تھا۔ میرے خیالات اسی طرح کے تھے اور کافی باتیں بھی ایسی سنائی جاتی تھیں، لیکن ابو نے میری ماں کو ہمیشہ رانی بنا کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں ابھی تک خوبصورت اور جوان نظر آتی تھی، اور یہ سب کچھ میرے ابو کی وجہ سے تھا۔ اور میری امی ابو کی زندگی بہت اچھی تھی۔ ایک مرد کیا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہے، اور عورت بھی بوڑھی تبھی ہوتی ہے جب اس کے ساتھ غلط رویہ رکھا جاتا ہے یا اسے دکھ دیا جاتا ہے۔ اگر بیوی کا خیال رکھا جاتا اور وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہتی تو اس میں فائدہ کس کا تھا؟ میرا ہی تھا۔ یہ سوچتا ہوا میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر چیک کر کے دیکھی کہ اندر انگوٹھی ہے یا نہیں، کہیں میرے دوستوں نے کوئی شرارت تو نہیں کر دی۔ لیکن ڈبی میں خوبصورت سی انگوٹھی نظر آ رہی تھی جس کو میں اپنی بیوی کی انگلی میں پہنانے والا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ میرے ساتھ بیٹھی تو میں نے اس کے ہاتھوں کو ہی دیکھ لیا تھا، اس کی طرف نظر بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی سامنے بیٹھی تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی پری ہو جو میرے کمرے میں آ گئی ہو۔ لیکن یاد آنے لگا جب میں اس کمرے میں اکیلا رہتا تھا اور لڑکیوں کے خیال میں سوچتا رہتا تھا کہ میری زندگی میں بھی کوئی لڑکی آئے گی، وہ کیسی ہوگی، کیا وہ خوبصورت ہوگی، کیا وہ مجھے دل سے اچھی لگتی ہوگی یا میری زبردستی اس کے ساتھ شادی کروائی جائے گی۔ لیکن میں خوش تھا کہ یہ لڑکی واقعی مجھے بہت اچھی لگی تھی اور میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزرنے والی تھی۔ اب ہمارے بیچ وہ سارے لمحے گزرنے والے تھے جن کا میں نے خواب دیکھ رکھا تھا۔ میں نے جا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ مجھے بہت زیادہ خوش ہو کر ملی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور دلہن بن کر اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور جب میں نے اس کی تعریف کی تو بدلے میں اس نے کہا کہ آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھیں، اس کے باریک باریک ہونٹ، سب کچھ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میں تو اسے دیکھ کے ہی دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے ہم 2 شکرانے کے نفل ادا کر لیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، تمہارے جیسی ہم سفر پا کر تو ضرور شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں تو ہمیں نظر لگ جائے گی۔ میں نے کہا کہ پہلے میں پڑھ لیتا ہوں پھر تم پڑھ لینا۔ میں نے 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے اور یہ سوچا کہ ابھی ایسا ہی سوچا کہ ہمیشہ اپنی بیوی کا ایسا ہی خیال رکھوں گا۔ ایسا لگا کہ میں نے آج خود سے وعدہ کیا تھا اور میں اس کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی دلہن کے لباس میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اب تم نوافل پڑھ لو اور پھر میرے پاس آ جانا۔ میری بات پر وہ کچھ زیادہ ہی گھبرا گئی، کہنے لگی آج کی رات وہ صرف عبادت کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ میری بیوی تو بہت نیک ہے۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور پھر اس پر 2 رکعت شکرانے کے پڑھنے شروع کر دیے اور پھر وہ اسی طرح عبادت میں مصروف ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ رات 12 بجے سے صبح کے 4 بج گئے مگر وہ ابھی تک عبادت میں مصروف تھی۔
लेकिन अब तो जैसे वो सजदे में ही सो गई, यानी कि वो सो गई, लगता था उसे नींद आ गई। उसने सजदा लंबा कर दिया, शायद अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हो। इसलिए 10 मिनट गुजर गए और वो अभी तक सजदे में पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे मजबूरन उसका नाम पुकारना पड़ा कि वो मैंने सोचा कि शायद नमाज में है तो वो अपनी नीयत तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन उठकर ज़रूर बैठ जाएगी। लेकिन ऐसा लगा कि वो सांस ही नहीं ले रही। उसे उठाकर सीधा किया, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। मैं भी हैरान हुआ और परेशान भी कि इसको क्या हो गया है। शायद वो थकन के मारे बेहोश हो गई थी, तभी वो सजदे से सर नहीं उठा रही थी। लेकिन अचानक से उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा। मैंने इसे जगाने की कोशिश की, उसके मुंह पर पानी की छींटें मारी, लेकिन वो बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैं बार बार इसे पुकारने लगा कि नफीसा, तुम्हें क्या हो गया है। मैं पूरी तरह से उसे झंझोड़ रहा था। अगर वो बेहोश होती तो उठ जाती। ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने अपने अम्मी अब्बू को बुलाया। मेहमान भी घर में मौजूद थे, जो रात को हमारे घर में ही रुक गए थे। उन्होंने सुबह को हमारे घर जाना था। सब मेरे कमरे में आ गए। जब मैं चिल्लाता हुआ बाहर आया तो सब लोग मुझे जिस नज़र से देख रहे थे, उन्हें उम्मीद थी वो तो उन्हें ना मिली। बीवी को चेक किए गए तो पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही। इसने जैसे ही सजदे के लिए ज़मीन पर सर रखा, इसकी रूह परवास कर गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि दुल्हन तो मर गई। अम्मी ने क्या कहा, इसके साथ तुमने क्या किया, तुमने तो लड़की को मार डाला। मैंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। अम्मी हमेशा ही मुझसे खफा रहती थी। खाला ने कहा कि तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया। वो हमेशा ही मुझसे खफा रहती थी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी बेटी के साथ शादी करूं। इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने ही लड़की के साथ कुछ ऐसा गलत किया है, तभी तो इस दुनिया से चली गई है। मेरी माँ ने इससे लड़ना शुरू कर दिया और न जाने किसने मेरी बीवी के माँ बाप को फ़ोन कर दिया, और वो लोग अपनी बेटी का हाल देखने के लिए आन पहुंचे तो उनकी हालत बहुत अजीब थी। वो अपनी बेटी को वहां से ले जाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि हमने ही कुछ किया है। मैं तो जैसे पागल सा हो गया। कोई मुझे पुकारता तो मुझे ठीक से उसकी आवाज़ सुनाई ना देती। मेरी जगह कोई होता तो शायद उसका यही हाल होता। खैर, वो लोग मेरी बीवी को ले गए। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी, और मैं जिसके साथ रहने के ख्वाब सजा रहा था वो इस दुनिया से जा चुकी थी। हम उन लोगों को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। हम उनके घर पहुंचे तो वो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे। जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने भी यही कहा कि आपने हमारी बेटी को मार डाला है, अब आप क्या लेने आए हैं। ये बात अपनी जगह ठीक थी कि अपनी प्यारी बेटी की शादी की जाए, और फिर शादी वाले दिन ही वो अपने शौहर के कमरे से मुर्दा हालत में बाहर निकाली जाए, और उसके बाद आप उसकी लाश ले आए अपने घर, तो ये सदमा आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन मेरी बीवी के घर वाले अजीबो गरीब तरीके से पेश आ रहे थे। वो मेरी बीवी की लाश को मुझसे छुपा रहे थे, मुझे उसके करीब तक नहीं जाने दे रहे थे। हमें ये तक पता नहीं करने दिया कि आखिर उसको हुआ क्या था। मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी, और मुझे लग रहा था कि शायद इसके अंदर अभी जान बाकी थी। लेकिन वो लोग उसको पहले ही वहां से ले आए थे। मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। मैंने कहा कि मैं इसे देखना चाहता हूँ, आखिर वो मेरी बीवी थी, मुझे क्या हक नहीं है कि मैं आखिरी दफ़ा उसे देख लेता। लेकिन वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे, दरवाजे के अंदर ही खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरे समझाने की कोशिश की, आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और हम अंदर चले गए। मेरे सास ससुर बहुत गुस्से में थे और कहने लगे कि शादी का मौका है और हमारे घर में भी मेहमान आए हुए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम नहीं जानते थे कि ये सब मेहमान हमारी बेटी की शादी पर तो ज़रूर आए हैं, लेकिन हमारी बेटी के जनाजे पर फातिहा पढ़ कर ही जाएंगे। आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया, हम अपनी बेटी को खुद दफन कर लेंगे, उसकी आखिरी रस्म भी अदा कर लेंगे। मैंने उन लोगों को कहा कि कसम खाकर कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। वो नमाज पढ़ रही थी और सजदे में जाते ही उसकी रूह परवास कर गई। इस बात पर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखा और खामोश हो गए। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई बात छुपा रहे हों, लेकिन इसके बाद यही कह रहे थे कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों ने ही कुछ किया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं अपनी बीवी को देखना चाहता था। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि उसकी आखिरी रस्म हमारे घर में ही होगी। आप लोग चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन किसी से कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लोग उल्टे सीधे सवाल करेंगे तो चुप रहिएगा। मेरी माँ बाप की हालत भी बहुत अजीब थी। हमें ऐसा लगता था कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और हम मुस्लिमों की तरह
परेशान हाल उनके घर में बैठे थे। वहाँ जो लोग आए हुए थे एक दूसरे से अजीबोगरीब बातें करने लगे। औरत मेरी माँ के पास आई और कहने लगी कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है, पता है। वो औरत शायद इतनी बूढ़ी थी कि इसे ये भी नहीं पता था कि इसे ये हमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन जब उसने हमें ये बात बताई तो हम हैरान रह गए। उसने कहा कि कोई भी औरत उस लड़की को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए और फिर ये जानना चाहा कि आखिर मामला क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी बहू को गुस्ल देने के लिए कोई औरत क्यों इनकार कर रही है। तो जब हम उस माँ से वजह पूछी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग ज़रा डर रहे हैं कि लड़की अपनी शादी की रात मर गई, तो इसके बारे में लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत होती है और उसके पास जाने से आप बदकिस्मती का शिकार हो जाएंगे, इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद दो औरतों ने हिम्मत की और गुस्ल देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी रिश्तेदार नहीं है, हम ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आखिर उनकी ज़ुबान से ये जुमला निकला तो मैं हैरान रह गया कि जैसी भी थी, क्या मेरी बीवी में कोई ख़राबी थी। लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक थी, कुछ गलत नहीं लगता था। वो लोग गुस्ल देने के लिए तैयार हो गई। खुदा के लिए आखिर यहाँ क्या हो रहा है। मैं थोड़ी देर में गुस्से से बोला, पहले तो मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई, आप लोगों का अजीब सा रवैया, और कोई इसको गुस्ल देने को तैयार ही नहीं है। अब ये औरतें अंदर गई हैं तो ये ऐसे बाहर आई हैं जैसे उन्होंने कोई अजाब देख लिया है। खुदा के लिए कोई मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है, नहीं तो ये गुनाह सारी ज़िंदगी मुझे तड़पाता रहेगा और मेरे लिए तो यही बात ही काफ़ी है और मैं इसी में मर जाऊंगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी बीवी मेरी होने से पहले इस दुनिया से चली गई। अभी तो मैं इसके साथ ठीक से बात भी नहीं की थी। मैंने तो इतने सारे ख्वाब सजा रखे थे जिसमें से कोई एक ख्वाब भी पूरा नहीं होने वाला था और ना ही होगा, क्योंकि ना वो कभी वापस आएगी। बिल आखिर उसकी माँ ने अपनी ज़ुबान से एक ऐसी बात बताई कि हम लोग भी हैरान रह गए। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास रुपया पैसा कुछ ना था, कि बस 2 वक्त की रोटी थी। लेकिन वो कहने लगे कि हमारी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और समझदार थी। एक आदमी को उससे इश्क हो गया जो कि बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी मर चुकी थी। हमारी बेटी से वो शादी करना चाहता था, लेकिन अमीर था और हमारी बेटी से मोहब्बत भी बहुत करता था। उसने हमारे घर आकर रिश्ता मांगा तो हमने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से कैसे करवा दे जो हमारी बेटी से उम्र में बड़ा था। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा जोर लगाया। बिल आखिर एक दिन हमारी बेटी ने खुद कहा कि वो उस आदमी से शादी करना चाहती है, क्योंकि वो आदमी बहुत अमीर है और वहाँ वो कब तक जिंदा रहेगा, जब मर जाएगा तो उसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। उसने ऐसा कहा कि आप मेरी शादी उसके साथ करवा दे, लेकिन निकाह करने से पहले वो हमें ख़त लिख कर दे कि इसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी होगी। वो मेरी बेटी की मोहब्बत में इस कदर पागल था कि वो ये सब कुछ मान गया और उसने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरा सारा कारोबार, मेरा घर और मेरी सब गाड़ियाँ जायदाद मेरी बीवी के नाम हो जाएगी। मैंने कहा लेकिन यहाँ से जाने वाला तो वो था नहीं, कुछ साल तो उसके साथ रहेंगे, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। मेरी बेटी ने कहा मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, आप लोग फिक्र ना करें। उस आदमी का नाम मुमताज़ था, वो हमारी बेटी के इश्क में पागल था। ऐसा इश्क हमने पहले कभी नहीं देखा था कि वो अगर मेरी बेटी कहती कि खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाता, वो कहती बैठ जाओ तो बैठ जाता, तमाम नाज और नखरे उठाता, दौलत को पानी की तरह बहाता था। जिस चीज़ पर मेरी बेटी हाथ रख देती उसी वक्त वो बाहर जाकर ले देता था कि मेरी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत उसको औरत मिल ही नहीं सकती थी। लेकिन शायद इसे मेरी बेटी से मोहब्बत हो गई थी, यही वजह थी कि वो मेरी बेटी का हर तरह का ख्याल रखता था, इसे बहुत ज़्यादा खुश रखता था। वो इससे एक मरतबा नाराज़ होकर हमारे घर वापस आ गई। तब उसने एक दिन हमारी बेटी के नाम दुनिया भर के तोहफे और फूल भेज दिए। हमने भी इसे अपना दामाद कबूल कर लिया। हम तो उम्र की दुआ करते थे, क्योंकि हमारी बेटी को इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई शख्स पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला था। हम मानते थे कि जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया तो ये सोचकर किया था कि ये मर जाएगा तो उसकी जायदाद हमारी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन अब हमने ये बात अपने दिल से निकाल दी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो हमारा भी बहुत ख्याल रखता था, हमारे घर के सारे खर्चे वही उठाया करता था, लाखों के तोहफे तो दिया करता था। मेरा बेटा तो कोई था नहीं, मैंने भी इसे अपना बेटा माना था। और ये फिर पता लगने लगा कि वो अचानक बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा है, और लेकिन फिर भी
हमारी बेटी का ख्याल वैसे ही रखता, उसके कामों में कोई कोताही ना करता था, इससे वक्त पर हमारे घर लाता और ले जाता था, इसे शॉपिंग भी करवाता था, होटल से खाना वगैरह भी खिलाता था, जो भी कहती थी वो मान लेता था। लेकिन हम इस बात पर हैरान थे कि मेरी बेटी को उसकी कोई परवाह नहीं थी, बस ज़रा भी परेशान नहीं थी। हत्ता कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, खुद उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि आपके दामाद के जिस्म के अंदरूनी जगह कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें थी जैसे कि दिल, गुर्दे, वो ख़राब हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे थे और इस तरह तो ये इस दुनिया से चले जाएंगे। इसके पास बहुत पैसे थे। हमने कहा कि बेटा इलाज करवाओ, लेकिन जिसके पास जाते तो वो यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है, अब इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन मेरी बेटी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो ज़रा भी परेशान है। हमने इससे कहा कि तुम नमाज पढ़ो और अपने शौहर के लिए दुआ करो, हम तुम्हारे शौहर के लिए आज मस्जिद में स्पेशल दुआ करवाएंगे। तो अचानक से फट पड़ी। उसने कहा कि मैं इसको मारने की तैयारी में हूँ और आप इसकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर हम हैरान रह गए। उसने कहा कि मैं अपने शौहर को स्लो पॉइजन दे रही हूँ ताकि वो बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए और तब हमारा काम हो जाए। हम लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। मेरी बेटी ने कहा कि लेकिन मैं एक बूढ़ा आदमी इसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकती। उस आदमी ने कहा पता नहीं 1 साल किस तरह गुजरा है, आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी बूढ़े आदमी के साथ गुजार दूं। हम समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे अपनी बेटी को कि बेटी जैसा भी है लेकिन तुमसे मोहब्बत करता है, और वो तो इस मकाम पर पहुंच गई थी कि जहाँ पर वो हमारी कोई भी बात समझने को तैयार ना थी। और फिर बदकिस्मती से मुमताज़ ने हमारी तमाम बातें सुन ली। उस बेचारे ने शायद 1-2 महीने बाद मरना था, लेकिन वो उसी वक्त इस दुनिया से चला गया। उसे हार्ट अटैक आया था। उसने जाते जाते बस इतना ही कहा था, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मेरे साथ दगा की, अल्लाह ही अब इंसाफ करेगा। उसे कोई परवाह नहीं थी। जिसने कफन दफन जैसे ही पूरा करवाया, 6 महीने बाद तुम्हारे साथ शादी कर ली। हम इसके नसीब में शायद यही लिखा था, ये सोचकर हम खामोश रहे और फिर देखो इसे सजा मिली। अब इसकी लाश अभी से गलने सड़ने लगी और कोई भी इसके पास जाने को तैयार नहीं है। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गए। उसके माँ बाप ने बताया कि वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ती थी। हम तो हैरान है कि अल्लाह ने इसकी नमाज कैसे पढ़ी जाए। शायद इसने तौबा करने की सोची होगी या नेक बनने का दिखावा कर रही थी। तुम जो कहते हो कि ये नमाज की हालत में मरी है, ये तो नहीं कोई जानता था कि, लेकिन इसके नमाज मुकम्मल होने से पहले इसे अल्लाह ने मौत दे दी क्योंकि इसने बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ था। ये सब जानने के बाद भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी को आखिरी दफ़ा देखना चाहता हूँ। मैं इसे देखने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने खुद पर अफसोस किया कि मैंने ये फैसला क्यों किया। मुझे इसे देखना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसकी वो सूरत मेरी आंखों में बस गई थी और इसका इंसाफ तो जैसे इस दुनिया में इबरत का निशान बनने वाला था। हम लोगों ने जैसे तैसे इसको कब्र की मिट्टी के हवाले किया। सब ने उसके ऊपर थू थू की, अल्लाह अकबर के सब ने कहा देखा तुमने लालची औरत के अल्लाह का इबरतनाक अजाब उसे आया। अगर आपको ये वाक़या से सबक हासिल हुआ है तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन्हें भी इबरत हासिल, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा।